have with us today a very special guest, Mr. Surinder Mehta ji, who's the National Secretary of IBJA, my good friend and a known face in the jewelry industry and expert on gold and silver. Mehta ji, today we wanted your views on a couple of things based on the upcoming Silver Show, second edition in Bombay in Jio. First, tell us the silver has kind of picked up a momentum from last couple of days. Where do you see the silver trajectory, the graph going from here? No, I would rather say this is just a beginning. Picture abhi baki hai. See, one should look at the gold prices, how the geopolitical tension is behaving, and why the gold prices have been moving up. And, to maintain that gold-silver ratio, the normal gold-silver ratio for all these years has been around 68 to 75. And currently, the gold-silver ratio is about 80. So, the silver prices are getting adjusted to the old regime of gold-silver ratio, and that is why they are rising. So the more gold prices rise, the silver will also rise, and it will try to match the ratio of anything between 68 to 75. And that is how silver prices, in my opinion, will keep rising. There can be a small correction. One should not get worried by the small correction, but they are all set to rise to a different, I would say, different time. Any forecast, any target you would like to give it till this year end? I feel that by 2024 calendar year end, that is December 2024, we should be looking at silver prices somewhere near 1,20,000 to 1,22,000 in Indian currency. And as far as in dollar terms, I personally feel that we should see silver prices somewhere near $39 to $42 in this point. Right. So that sets the tone now for our upcoming Silver Show of India from the June 7, 8, 9, 10, 4 days show. So, Mehtaji, IBJA has been one of the key movers behind the Silver Show in Bombay. We used to do it in Bangalore. Still, it happens on a smaller scale. But जैसे ही ये venues का बॉम्बे में move हुआ, the scale, the level in terms of number of exhibitors participating, in terms of the variety from all over India, number of visitors, everything has gone to the next level. So, would you share your views on the upcoming show? क्या scale है, क्या highlights है show के? देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सक्लूसिव सिल्वर शो है जिसमें सिल्वर के सिवाय हम दूसरा कोई भी प्रदर्शनी नहीं कर। सेकेंडली, इसमें जो स्टॉल्स हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉल है। आज तक किसी एक्सक्लूसिव सिल्वर शो में इतने स्टॉल हुए ही नहीं है। We are going to have about 752 to about 775 stalls this year. It will be at Jio Convention Center, Mumbai on 7th, 8th and 9th June 2024. We can look at about 600 to 650 tons of jewelry, utensils, artifacts, articles of silver, and one can see the real craftsmanship of people manufacturing silver artifacts and utensils. We must praise them, we must acknowledge them, and I request everyone, यदि आप सिल्वर का बिजनेस करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, और मैं तो मानता हूं कि सिल्वर ये फ्यूचर है गोल्ड का, ये फ्यूचर ऑफ गोल्ड मैं ये कह सकता हूं। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में आपको सिल्वर में एंट्री मारनी ही पड़ेगी, तो आप इस सिल्वर शो में जरूर विजिट कीजिए। राइट। और मेहता जी, जितने भी हमारे सिल्वर हब्स हैं, ज्वेलरी और आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग सिल्वर हब्स इन इंडिया, चाहे वो साउथ में आप देख लीजिए, कोल्हापुर है, सेलम है, कोयम्बटूर है, बैंगलोर एक बहुत बड़ा सिल्वर का भी हब बन गया है, और नॉर्थ में ऑफ कोर्स आगरा, जयपुर एंड अदर प्लेसेस। तो वो सभी मार्केट्स के रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी बिल्कुल, वी हैव अ पार्टिसिपेशन। आगरा से पार्टिसिपेशन है, जयपुर से है, कोल्हापुर से है, सेलम से है, बैंगलोर से ऑफ कोर्स है ही है, राजकोट से हैं, और ऐसे तमाम हब्स
जहाँ पे सिल्वर का अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो तमाम लोग इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अक्रॉस इंडिया हमारे पास लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 12 से 14 हजार लोगों के पेड रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इतने भारी मात्रा में जो विजिटर रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मली किसी शो में होते नहीं, और एक्सक्लूसिव सिल्वर शो में इतने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। मेरा मानना है कि हम एक सुपर ड्यूपर शो की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा शो जो शायद सिल्वर इंडस्ट्री के लिए एक इतिहास बनेगा, और ये सिल्वर बिजनेस के लिए भी एक हिस्ट्री क्रिएट कर। राइट। और जो ज्वेलरी रिटेलर्स सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स गिफ्टिंग में डील करते हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत ही व्हाट शुड आई से, इट्स अ वंडरफुल, शानदार अपॉर्चुनिटी है कि अंडर वन रूफ, जैसे आपने बताया 15-20 जो हब हैं हमारे ज्वेलरी सिल्वर के, वहाँ के सबके बेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स उनको मिलेंगे। नहीं तो आज की डेट में सोर्सिंग करना इंडिया में, कितनी जगह पे जाना, और इवन मैन्युफैक्चरर्स को रिटेलर्स को जाना, वन रूफ के अंदर मिलना, तो ये रिटेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान है, बून है सिल्वर ज्वेलरी के लिए। और इसमें आप किस तरह का बिजनेस होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं बिजनेस को तो मुझे लगता है कि करीबन करीबन मुझे लगता है कि करीबन 1000 से 1100 टन का मैं बिजनेस एक्सपेक्ट करता हूँ सिल्वर का। क्योंकि जिस प्रकार का एंथुजियाज्म है, जो विजिटर्स हैं, जो डिस्प्ले में हमारे पास आइटम आ रहे हैं, जो हमारे पास रिक्वेस्ट है लॉजिस्टिक की, वो सब बहुत ही अमेजिंग है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। और देखिए, गोल्ड का जो बिजनेस होता है उसमें तो अमाउंट बहुत बड़ा होता है, सिल्वर में अमाउंट तो छोटा होता है, लेकिन मैं बता दूं प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है सिल्वर में। लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ा है आपने, जैसे ये हजार बारह ये सौ टन हजार मुझे बारह सौ टन की देखिए, बात मुझे की। लगता है कि हम एक हिंदुस्तान में नई नई एक नई दिशा की तरफ सिल्वर इंडस्ट्री में हम मूव कर रहे हैं। और भारत सरकार भी सिल्वर को बहुत ही अलग नजरिए से अब देख रही है। हॉलमार्किंग और ये सब बहुत ही मैंडेटरी होने वाला है, आने वाला है। तो ये सारी चीजें, ये बदलाव हम इंडस्ट्री में देखेंगे, और हम देखेंगे कि सिल्वर का बिजनेस बहुत बड़ी मात्रा में होता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम गोल्ड तो साल में सिर्फ 700-800 टन कंज्यूम करते हैं, मगर हमारा सिल्वर इंपोर्ट लगभग 8000 से 11000 टन का है हाँ। सालाना। और तो ये जो फिगर्स हैं, तो आप गोल्ड की तरफ मत देखें, आप सिल्वर की तरफ देखें। इंडस्ट्रियल यूसेज है, सोलार यूसेज है, और ऐसे तमाम यूसेज हैं। मेडिकल में यूज होता है आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रहा है, करेक्ट। टेलीफोन्स में यूज हो रहा है। तो ऐसे बहुत जगह पे सिल्वर यूज हो रही है। तो आपको सरप्राइज होगा, हमारे पिछले गोल्ड शो के अंदर, हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर डाबर से लोग आए थे। क्योंकि वो उनके च्यवनप्राश के अंदर सोना जबरदस्त मिक्स। में सोना तो लाता है, हमें राइट। किसी भी मल्टी। इंडस्ट्री को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री। Yeah, and I was talking to the new WGC MD Sachin Jain. He is saying कि अभी नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी चिप्स बन रही है उसमें गोल्ड की बहुत कंजम्पशन बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमिंग टू ये गोल्ड के ऊपर एक फोकस्ड है मेहता जी, आई रिमेम्बर कि एक साल 2 साल पहले आपने एक अपना वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल की एक डिस्कशन किया था, इसके बारे में थोड़ा प्रोग्रेस किया था। तो वो उसमें क्या अभी आगे डेवलपमेंट है? और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को एक स्पेशल बॉडी, जो सिल्वर इंडस्ट्री की जो उनकी नीड्स है, जो उनकी प्रोग्रेस है, जो उनका उनको हेल्पिंग हैंड है वो दे सके, एक वो बॉडी, आप उसको कैसे आगे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल की स्थापना कर दी है। आज की तारीख में वो इब्जा की एक सब्सिडरी कंपनी है। हाँ। हम चाहते हैं कि जो सिल्वर के बड़े प्लेयर्स हैं इस जी। संस्था में जुड़े, इस हम्म। संस्था को मैनेज करें, वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल को मैनेज करें। हाँ। और जो भी सिल्वर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी सरकार से एक्सपेक्टेशन है, वो इस संस्था के जरिए भारत सरकार तक लेके जाए। इंडस्ट्री में सिल्वर को एक अलग रूप आया, अलग आयाम मिलेगा यदि हम वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल के थ्रू इसमें मूव करेंगे। और मैं सारे सिल्वर इंडस्ट्री से निवेदन करूंगा कि यदि आप सिल्वर का व्यापार करते हैं तो उस वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल के आप मेंबर बनिए, और इसमें जुड़िए, और अपनी इंडस्ट्री को इस संस्था की तरफ से आगे बढ़ाएं।
राइट। और जो थोड़ा मेहता जी, कभी भी सिल्वर रेट इंटरनेशनल और इंडिया में डिस्पैरिटी पे चलता है, डिस्काउंट पे चलता है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें आप क्या देख रहे हैं? वो गैप पूरा हो जाएगा? इट विल बी एट द पैरेलल लेवल व्हाट इट हैज टू बी? नहीं देखिए, ये हमें समझना होगा कि ये सारे मैं इसको आपदा में अवसर मानता हूँ। दिस आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ट्रेड। आपको दुबई से जो सिल्वर आ रही है, जो टीआरक्यू को दुबई से जो सेपा एग्रीमेंट के तहत सिल्वर आती है, उस पे आज की तारीख में 8% ड्यूटी लगती है। और उसके सिवाय यदि कोई सिल्वर आती है तो उस पे 15% ड्यूटी लगती है। तो नेचुरली ये जो डिस्काउंट है ये उसी वजह से है। लेकिन दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। ये आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिल्वर कहाँ से आ रही है, उसमें क्या डिस्काउंट है, कौन सी कंट्री से लाने में ज्यादा फायदा है। हमने इब्जा ने उसके लिए कई प्लेटफॉर्म हमने शुरू करवाए हैं। हमने IIBX जो गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, वो हमने शुरू करवाया है। तो हम सारे बैंकों के जरिए हम आप सिल्वर मंगा सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म है। आप वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल से जुड़िए, इब्जा से जुड़िए। हम आपको इसकी तमाम जानकारियां देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इब्जा सिर्फ देना जानती है, लेना कुछ नहीं जानती है। आपको इब्जा से जुड़कर जरूर फायदा, वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल से भी जुड़कर जरूर फायदा। राइट। इसी कड़ी में ये सिल्वर शो ऑफ इंडिया है जो इब्जा प्रेजेंट कर रही है, तो इसका एक बार दोबारा से मेहता जी हाइलाइट्स, डेट्स, टाइमिंग, वेन्यू और वेबसाइट तुम हम अभी अपने स्क्रीन पे चलाएंगे जहां लोगों को रजिस्टर करना है। एक बार दोबारा इसका ओपनिंग डेट और टाइमिंग और क्लोजिंग डे बता दीजिए। ये जो सिल्वर शो ऑफ इंडिया है, ये जियो कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बंबई में 7, 8 और 9 जून 2024 को होगा। इसमें लगभग 750 से 800 स्टॉल हैं। और लगभग 600 टन तक ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल आपको वहां पर प्रदर्शनी में दिखाई देंगे, एग्जीबिशन में दिखाई देंगे। ऑल राइट, फाइन, थैंक यू सो मच मेहता जी।